Dear students, today I am going to teach you the lesson The Ailing Planet, the green movement's role. Ailing means sick, and here planet means earth on which we are living. Nowadays, we can notice that our planet on which we are living is sick. In the beginning, we were given this type of earth, means full of greenery, along with balanced environment, nourishing environment, fostering environment, पोषक पर्यावरण के साथ ये पृथ्वी हम सभी को दी गई थी. But misfortunately, for our luxuries, we have made this planet, this earth, such as polluted, sick. We have also made we have also destroyed the proper environment of the earth. Such types of industries release smoke full of poisonous gases. This lesson highlights on the factors that are responsible for the declining health of the earth. This chapter was originally an article, a piece of writing written by Naini Palkhiwala, and this article was published in the newspaper, and the name of the newspaper, The Indian Express, when on November 23rd, 1994. The writer discusses the green movement, Harit Andolan, in this given lesson, and how a Jew in Zambia is land-located country of South Central Asia, Africa. South Central Africa. It has taken its name from Zambezi River. Lusaka is its capital. So how a Jew in Zambia declared human beings as world's most dangerous animals
means human beings are the world's most dangerous animals on this earth. The writer also highlights on overpopulation, deforestation, and what should be our responsibility towards the proper environment. Now, we will know all about the detailed informations given by the writer in this given lesson. The Green Movement started nearly 25 years ago. जो हरित आंदोलन था, that was started nearly लगभग 25 years ago, 25 साल पहले प्रारंभ हुआ. For making this earth healthy, इस पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand in 1972. संसार का पहला राष्ट्रव्यापी, वर्ल्ड वाइड मीन्स राष्ट्रव्यापी, हरित दल, ग्रीन पार्टी मीन्स हरित दल, which was to do something better for making the environment proper, जिसे करना था कुछ ऐसा जिससे हमारी इस पृथ्वी का इन्वायरमेंट प्रॉपर हो सके या प्रॉपर बन जाए. तो वो हरित दल ग्रीन पार्टी 1972 में न्यूजीलैंड में फाउंडेड मीन्स स्थापित हुआ. नाइनटीन 1972 में न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड फॉर मेकिंग दिस अर्थ हेल्दी, इस पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए. सिंस देन, तब से, द मूवमेंट मीन्स दिस ग्रीन मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखा इस आंदोलन ने. मीन्स इट कॉन्टिन्यूअसली covered its destination or the path of its destination for making the earth healthy. In fact, वास्तव में no other movement in the world history has excited human race so much as green movement. संसार में किसी अन्य आंदोलन ने मानव जाति को इतना अधिक उत्तेजित नहीं किया. एक्साइटेड मीन्स इंसाइटेड, एजिएटेड, स्टायर्ड, इतना उत्तेजित नहीं किया जितना कि हरित आंदोलन ने किया. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, there is a growing awareness that the earth itself is a living organism
ऑर्गेनिज्म मीन्स क्रिएचर, जीव, प्राणी। पहली बार ये अवेयरनेस बढ़ी है, चेतना बढ़ी है कि पृथ्वी स्वयं भी एक जीवधारी रचना है, लिविंग है। It has its own metabolic needs and essential processes. Metabolic is a system that is in our body. This system makes energy from food. So it has own metabolic needs. इसकी अपनी जीव संबंधी आवश्यकताएं हैं एवं एसेंशियल प्रोसेसेस, अति आवश्यक प्रक्रियाएं भी हैं, प्रोसेसेस भी हैं। The science pertaining to the earth's life show a patient in declining health. पृथ्वी के जीवन संबंधी चिन्ह एक मरीज को अवनति डिक्लिनिंग स्वास्थ्य में दिखाते हैं। द साइन मीन्स संकेत, पर्टेनिंग मीन्स संबंधित, टू द अर्थ्स लाइफ माने पृथ्वी के जीवन के, सो माने प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। अ पेशेंट एक रोगी के रूप में दिखाते हैं। इन डिक्लिनिंग हेल्थ गिरते हुए स्वास्थ्य में। People have now fully realized their moral duty to be good custodians of the planet. लोगों ने अब धरती के कस्टोडियंस के रूप में, संरक्षक के रूप में, पैट्रॉन के रूप में, प्लैनेट कहते हैं अर्थ को, अर्थ के कस्टोडियंस के रूप में अपनी नैतिक कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझने के लिए महसूस किया है। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ legacy टू फ्यूचर जनरेशंस। तथा भविष्य की पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी ट्रस्टी के होने के नैतिक कर्तव्य को भी समझा है। लीगेसी मीन्स वसीयत, धरोहर। फ्यूचर जनरेशन मीन्स कमिंग जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियां। कि ये जो पृथ्वी है, जो हम लोग इस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों को देकर जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सभी लोग ये रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज हैं, उत्तरदायी ट्रस्टी हैं, संरक्षक हैं। हम किस तरीके की पृथ्वी अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर जा रहे हैं। The World Commission on Environment
and development popularized the concept of sustainable development in 1987. 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर संसार के कमीशन ने जारी रखे जाने योग्य विकास की धारणा को लोकप्रिय किया, पॉपुलराइज किया। किसको लोकप्रिय किया? कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको पॉपुलराइज किया किसने? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। It defined the idea as the development that meets the needs of the present without endangering the ability of future generations to meet their needs. इसने इस विचार की परिभाषा ऐसे विकास के रूप में भी की जो कि लोगों की भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यताओं को खतरे में डाले बिना उनकी अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे। द सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग। Now he has realized, अब उसने महसूस किया, the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब Man is the most dangerous animal in the world. जो आदमी है वो इस पृथ्वी पर, इस संसार में सबसे खतरनाक प्राणी है। Now he has realized, अब उसने ये अनुभव किया, या उसने ये समझ लिया। The wisdom means realize the wisdom, उसने समझ लिया। अब उसने प्रभुत्व पर आधारित प्रणाली से भागीदार की प्रणाली में बदलने की बुद्धिमत्ता को समझ लिया। पहले आदमी ये सोचता था कि डोमिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन रेस, because this human race is the best creation on this earth. लेकिन उस अब डोमिनेशन वाली जो विचारधारा है उसको अब शिफ्ट करने में ये अपनी समझदारी लगा रहा है। और किसमें शिफ्ट? पार्टनरशिप बेस में, कि हम डोमिनेंट नहीं है इस पृथ्वी में, बल्कि वी आर द पार्टनर्स ऑन दिस अर्थ। जैसे सारे जीवों को अधिकार है, एज ऑल द क्रिएचर्स हैव राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ, एज मैन हैज आल्सो। तो डोमिनेशन टू पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में आया, ये बहुत अच्छा विचार था। जब डोमिनेशन का विचार था, व्हेन
Man had the thought of domination in his mind. At that time he was destroying everything for his luxuries. Scientists have arranged a list of 1.4 million living 1.4 million living species on earth besides man. वैज्ञानिकों ने मनुष्य के अतिरिक्त पृथ्वी पर 1.4 मिलियन इन हिंदी डिजिट सिस्टम 14 लाख 14 lakhs जीवित प्रजातियां, स्पीसीज मीन्स जीवित प्रजातियां की सूची तैयार की है. About 3 to 100 millions other living species still stay unnamed in humiliating darkness. लगभग 30 लाख से 1000 लाख अन्य जीवित प्रजातियां, जिनको हम नस्लें कहेंगे, अभी भी अपमानजनक अंधकार में गुमनाम पड़ी है. मीन्स उनके नाम तक नहीं दिए गए हैं. The Brandt Commission was the first international commission to deal with the question of ecology and environment. ब्रांट कमीशन पहला अंतर्राष्ट्रीय कमीशन था जिसने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पर अपना सरोकार रखा. The first Brand reports raised the question whether we were to leave our successors a dried earth of increasing deserts, poor landscapes, and ailing environments. पहली बार ब्रांड्स की रिपोर्ट ने ये प्रश्न उठाया कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए मरुस्थलों, इंक्रीजिंग डिजर्ट्स, बढ़ते हुए मरुस्थलों, ड्राइड अर्थ, सूखी पृथ्वी, और क्या, पुअर लैंडस्केप्स, मीन्स बहुत आकर्षणहीन पृथ्वी के चित्रों को तथा एक बीमार पर्यावरण छोड़कर जाएंगे. ब्रांड रिपोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या हम इस पृथ्वी को अपने उत्तराधिकारियों के लिए क्या सूखी पृथ्वी छोड़कर जाएंगे
बढ़ते हुए डिजर्ट्स, रेगिस्तान छोड़ कर जाएंगे और पुअर लैंडस्केप्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की जगह में पुअर लैंडस्केप छोड़ कर जाएंगे, या फिर एलिंग इन्वायरमेंट छोड़ कर जाएंगे। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन हैज़ लिस्टेड अर्थ्स 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन ने पृथ्वी की 4 मुख्य जीव विद्या संबंधी बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बायोलॉजिकल माने जीव संबंधी प्रणालियाँ की सूची बनाई है। हु हैज़ मेड? लेस्टर आर ब्राउन ने। बायोलॉजिकल सिस्टम्स कितने बताए हैं? 4। दीज आर फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रॉसलैंड्स, क्रॉपलैंड्स। फिशरीज कहते हैं मत्स्य, मछलियों के पालन को। सेकंड, फॉरेस्ट, वन, जंगल। ग्रॉसलैंड्स, घास के मैदान। क्रॉपलैंड्स, कृषि योग्य भूमि। ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू लेस्टर आर ब्राउन के हिसाब से। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम। ये संसार की आर्थिक, इकोनॉमिक सिस्टम माने आर्थिक प्रणाली का आधार बनते हैं या बनाते हैं। फॉर्म मीन्स बनाते हैं, रूप देते हैं। दे सप्लाई अस फूड, वे हमें भोजन देते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विशाल क्षेत्रों में दीज सिस्टम्स आर रीचिंग। ये जो सिस्टम्स हैं, ये 4 जो सिस्टम्स हैं, कौन कौन से 4 सिस्टम्स हैं? फर्स्ट इज फिशरीज, सेकंड इज फॉरेस्ट्स, थर्ड इज ग्रासलैंड्स एंड फोर्थ इज क्रॉपलैंड्स। संसार के विशाल क्षेत्रों में ये प्रणालियां, ये सिस्टम्स जारी न रखे जाने योग्य स्तर तक पहुंच गई हैं। In the large areas of the world, these systems are reaching unsustainable level. Sustainable means जारी रखना। तो जारी रखने योग्य नहीं रहे हैं ये सिस्टम्स। इतना ज़्यादा इनका शोषण किया गया है कि अब इनमें ये जारी नहीं रह सकते। Their productivity is being damaged. उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पाद क्षमता है, डैमेज हो रही है, ये डैमेज हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। हो रही है। When this happens, fisheries break down, forests disappear, grasslands are changed into barren wastelands,
and crop lands become worse. जब ऐसा होता है तो मछली पालन का क्षय हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो ग्रॉस लैंड्स हैं आर चेंज्ड, बदल जाते हैं इनटू बैरन वेस्ट लैंड्स, बंजर भूमि में बदल जाते हैं। वेस्ट लैंड्स मीन्स बंजर भूमि। एंड क्रॉप लैंड्स बिकम वर्स, और क्रॉप लैंड्स जिनमें खेती की जाती है वो ज़मीन खराब हो जाती है। Overfishing is common in protein hungry world. प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड में ओवर फिशिंग इज कॉमन। अधिक संख्या में मछलियां पकड़ना ये एक सामान्य सी बात हो गई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मछलियों से मिलता है। तो दिस इज अ स्टफ आवर बॉडी रिक्वायर्स इट। हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है। तो अधिक से अधिक प्रोटीन हमें मिले, इसके लिए हम ओवर फिशिंग करते हैं, अधिक संख्या में मछलियों को पकड़ते हैं और उनसे ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड। जो स्थानीय जंगल हैं उन्हें नष्ट किया जाता है। फॉर विच रीजन? टू ऑब्टेन फ्यूल फॉर कुकिंग। खाना पकाने के लिए ईंधन को प्राप्त करने के लिए। Tropical forests are wearing away at the rate of 40 to 50 million acres a year. समझिए, ट्रॉपिकल कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वन को। 40 से 50 मिलियन माने 4 से 5 करोड़ एकड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से क्षीण हो रहे हैं, समाप्त हो रही है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग deprives the soil of an important natural fertilizers. जलाने के लिए जो डंग है, गोबर है, इसका भी प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो जलाने के लिए गोबर का बढ़ता हुआ जो प्रयोग है, उपयोग है, भूमि को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक, खाद, फर्टिलाइजर देने से वंचित करता है। Over the last 4 decades, India's forests have reached disastrous
एग्जॉशन। पिछले 4 दशकों में, डिकेड्स कहते हैं दशक को, भारत के वन जंगल आपत्तिकारक रिक्तीकरण तक पहुंच गए हैं। डिसास्टर्स मीन्स विनाशकारी, रिक्तीकरण तक पहुंच गए हैं, खाली हो गए। इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। समझो, भारत 3.7 मिलियन मीन्स 37 लाख एकड़ प्रति वर्ष की दर से वन गंवाता जा रहा है। माने प्रतिवर्ष इतने वन समाप्त हो रहे हैं। 37 लाख एकड़ भूमि से वन डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। Large areas officially named forest land are almost treeless. विशाल क्षेत्र, लार्ज एरिया में विशाल क्षेत्र, जो सरकारी रूप से, ऑफिशियली माने सरकारी रूप से वन भूमि नामित हैं, वन भूमि के रूप में जाने जाते हैं, फॉरेस्ट लैंड के रूप में जाने जाते हैं, नेम्ड हैं, और कैसे हो गए हैं? लगभग वृक्षहीन हो गए, पेड़ रहित हो गए, ट्रीलेस हो गए हैं। A UN study warns that the environment has deteriorated quite badly in many of the 88 countries investigated. UN means United Nations. संयुक्त राष्ट्र का एक अध्ययन है, स्टडी है। वार्न्स माने जो चेतावनी देता है, अध्ययन चेतावनी देता है कि 88 इन्वेस्टिगेटेड माने जिनकी जांच की गई है, ऐसे देश में से कई में पर्यावरण का बहुत बुरी तरह से पतन हुआ है। डिटेरियोटेड मीन्स विनाश हुआ है, पतन हुआ है। The growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. संसार की जनसंख्या में वृद्धि, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, संसार की जनसंख्या की वृद्धि मानव समाज के भविष्य में विकृत लाने वाले सुदृढ़ कारणों में से, माने स्ट्रॉन्ग कारणों में से एक है। Mankind reached the first billion mark in more than a million years. बताइए, मीन्स मानवता का पहला अरब
1 बिलियन की स्तर माने चिन्ह पहुंचने के लिए 10 लाख से अधिक वर्ष लगे। माने मैनकाइंड पहले बिलियन में पहुंचने के लिए 1 बिलियन में पहुंचने के लिए 1 अरब होने में 10 साल उसको लगे मैनकाइंड को, तब 1 बिलियन इस पृथ्वी पर आदमी हो पाए। A million ईयर्स लगे। A million कहते हैं 10 लाख साल लगे, उससे भी अधिक लगे, मोर देन आया है यहाँ। That was the world population in the year 1800। और ये कब था? ये संसार की 1800 में जनसंख्या थी। 1800 में जनसंख्या लगभग 1 बिलियन थी, और ये 1 बिलियन पहुंचने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए थे। मतलब इतना स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ था। बाय द ईयर 1900 और 1900 तक अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। एक अन्य बिलियन जोड़ दिया गया। समझो, 10 लाख से अधिक वर्ष लगे 1 बिलियन में पहुंचने के लिए, और इधर इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी कि 100 सालों में 1 बिलियन और जुड़ गया। The 20th century was added another 3.7 billion। समझो, अब 1900 से लेकर 20th सेंचुरी माने 2000 तक, 2000 सन तक हैज़ एडेड 3.7 बिलियन। अब से तो 3.7 बिलियन हो गए हम। 20वीं शताब्दी में हम 3.7 बिलियन जुड़ गए। मतलब 100 साल में 1800 तक 1 बिलियन थे, 1900 में सेकंड माने 2 बिलियंस हो गए, और 2000 में हम 3.7 बिलियन हो गए। 1.7 बिलियन इंक्रीज्ड हो गए, हम लोग बढ़ गए। कितनी फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इधर। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अब समझो 2000 से कितना सा अभी हुआ है, टाइम कितना हुआ है? 20 ईयर्स तो हुए हैं। और जो इस समय वर्तमान समय में वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसका एस्टीमेट है, अनुमान है कि वो 5.7 बिलियन हो गया है। कितनी फास्ट जनरेशन ग्रोथ हो रही है। एवरी 4 डेज, प्रत्येक 4 दिनों में
द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 बिलियन। अब समझो, प्रत्येक 4 दिन में संसार की जो जनसंख्या है वो 1 बिलियन बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे स्वास्थ्य सुधरता, फर्टिलिटी हमारी बढ़ती जाती है। और केवल इनकम राइजेज नहीं, नॉट ओनली दिस, एजुकेशन स्प्रेड्स। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता है एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य सुधरता है, वैसे वैसे हमारी फर्टिलिटी जो रेट है, जनसंख्या पैदा करने की जो क्षमता है, वो भी बढ़ती जाती है। Development is the best contraceptive. However, development may not be possible if population goes on increasing at this rate. विकास सबसे अच्छा निरोधक है, कंट्रासेप्टिव है। किंतु डेवलपमेंट में नॉट बी पॉसिबल, विकास संभव नहीं हो पाएगा यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही। इफ पॉपुलेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग एट दिस रेट, population of India is estimated to be 920 millions in 1994. 1994 में भारत की जनसंख्या 92 करोड़ थी। 920 मिलियंस मीन्स 92 करोड़ थी, एस्टिमेटेड थी। इट इज मोर देन द इंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। समझो, ये अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों की पूरी जनसंख्या को एक साथ जोड़ने पर भी इनसे अधिक है। Unless population control is given topmost priority, the hope of the people would die in their hungry hutments. जब तक जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, मोस्ट प्रायोरिटी अगर नहीं दी जाएगी जनसंख्या कंट्रोल को, टॉप नहीं दी जाएगी, टॉप मोस्ट प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक लोगों की आशा उनकी भूखी झोपड़ियों में ही मर जाएगी। हटमेंट्स कहते हैं झोपड़ियों के समूह को। होप ऑफ द पीपल माने लोगों की आशा, वुड डाई मर जाएगी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू
voluntary family planning without an element of coercion. किसी जोर जबरदस्ती के तत्व से रहित स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। जब तक बाध्य नहीं किया जाएगा लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फोर्स करना पड़ेगा। The choice is really between control of population and continuation of poverty. वास्तव में चुनाव तो जनसंख्या के नियंत्रण तथा गरीबी जारी रखने के बीच में है। या तो आप जनसंख्या नियंत्रण को चुन लें तो गरीबी समाप्त हो जाएगी, अगर नहीं चुनते तो पॉवर्टी विल बी गोइंग ऑन, जारी रहेगी। पॉवर्टी विल बी कंटिन्यूइंग, गोइंग ऑन, कीपिंग ऑन। वी नोटिस a surpassing concern people are worried not only about their own survival but that of planet as well. हम एक बढ़ती हुई चिंता को देखते हैं। लोग न केवल अपने जीवित रहने के विषय में चिंतित हैं, बल्कि इस ग्रह पृथ्वी के विषय में भी चिंतित हैं। केवल अपने ही सर्वाइवल के बारे में नहीं चिंतित हैं, प्लैनेट के भी सर्वाइवल के बारे में चिंतित हैं। People have begun to take an overall view of the very basis of life. लोग जीवन के आधार के विषय में व्यापक दृष्टि रखने लगे हैं। ओवरऑल व्यू रखने लगे हैं, व्यापक दृष्टि रखना शुरू कर दिया है। और किसके बारे में? जीवन के आधार के बारे में, के विषय में। The environmental problem is our passport for the future. पर्यावरण की जो समस्या है ये हमारे लिए भविष्य को संभावित करने वाली है। पासपोर्ट है फॉर आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए। अगर हम नहीं सुधरे तो बहुत बुरा होने वाला है। आगे वाली मीन्स कमिंग जनरेशन विल सफ़र हार्ड फ्रॉम दिस बैड इन्वायरमेंट विच वी विल लीव फॉर देम, जो हम उनको छोड़ कर जाएंगे। यही हम लेगेसी देकर जाने वाले हैं अपने सक्सेसर्स को। सुधरें।
A new world vision has emerged. संसार का एक नई दृष्टि उत्पन्न हुई है, जनरेट हुई है। क्या it has ushered in the era of responsibility? Ushered means प्रारंभ होना, श्री गणेश होना। इसने दायित्व के युग का प्रारंभ किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के इरा को प्रारंभ किया है। इट हैज़ अ हॉलिस्टिक व्यू। इसका एक हॉलिस्टिक व्यू है, समग्र दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू। और वो कौन सा है? परस्पर संबंधों वाला दृष्टिकोण। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के प्रति इकोलॉजिकल व्यू आया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ अच्छा देकर जाएं। हमारे पूर्वजों ने तो इतना बिगड़ा हुआ नहीं दिया था एनवायरनमेंट हम सभी को, हम लोगों ने ज़्यादा बिगाड़ा है। और ये अगर हम अवेयर नहीं हुए तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, दे विल एब्यूज अस, हम सभी को बहुत गाली देंगी। We now see the world as an integrated whole rather than separate parts. अब संसार को पृथक भागों के बजाय इंटीग्रेटेड रूप में, मीन्स अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ पूर्ण रूप से समझते हैं। इंटीग्रेटेड रूप अब आया है, मीन्स पूरी पृथ्वी के बारे में अब हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। पहले हम सेपरेट पार्ट्स में सोचते थे। Industry has very important role to play in this new era of responsibility. उत्तरदायित्व के इस युग में, इरा कहते हैं युग को, उद्योगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। Leading businessmen should excel in environmental performance. Leading means अग्रणी। बिजनेसमैन, उद्योगपतियों को वातावरण संबंधी कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में उनको आगे आना चाहिए। एक्सेल मीन्स आगे बढ़ना चाहिए। Then they can continue to exist as leading manufacturers. तब वे जारी रख सकते हैं क्या? अग्रिम पंक्ति के निर्माणकर्ताओं के रूप में अपने आप को जारी रख सकते हैं। The words of Margaret
Thatcher are used frequently. Margaret Thatcher was former PM of UK, United Kingdom. मार्गरेट थैचर के शब्दों को लोग प्रायः प्रयोग करते हैं. क्या शब्द थे उनके? She remarked, "No generation has a free hold on this earth." उसने अर्थात थैचर ने ये कहा था कि किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी पर असीमित समय के लिए अधिकार नहीं है. फ्री होल्ड नहीं है कोई भी पीढ़ी ऑन दिस अर्थ. ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल ऑफ रिपेयरिंग लीज. जो कुछ हमारे पास है वो जीवन पर्यंत निवास है जिसमें पूरी तरह से मरम्मत करने का अधिकार है. रिपेयरिंग लीज है ये. मिसेस लेस्टर ब्राउन, द ऑथर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, rightly observes, जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन हैं उन्होंने अपनी पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में कहा है. क्या कहा है उसमें? राइटली ऑब्जर्व किया है, सही कहा है, सही ऑब्जर्वेशन है उनका कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमने ये भूमि अपने पूर्वजों से पैतृक रूप में प्राप्त नहीं की है. इनहर्ट नहीं किया है, इनहेरिटेड नहीं है, इनहेरिटर्स नहीं हैं इस पृथ्वी के. तो हैं क्या? वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है. ये जब तक सोच नहीं बनेगी, बच्चों की है ये पृथ्वी, आने वाली पीढ़ियों की ये पृथ्वी है, उनसे हमने उधार लिया है, तो हम कम बिगाड़ेंगे इसको. और जब हम ये सोचेंगे कि हम अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं तो ज़्यादा बिगाड़ेंगे. So this was the detailed explanation of this lesson. Video has been very long, but you can watch this video in 2 parts. Thanks a lot for watching this video. I will send the questions and answers of this lesson in the group. Thank you very much.